Just 1 second, it is going live. Okay. We are live. Just 1 second. Check on the page, Rida. Yeah. Great. Assalamualaikum everyone. I hope everyone's doing well. AccuCheck is providing a platform to address queries patients with diabetes and caregivers have, and to create awareness regarding the same. We're starting off this campaign with a very important topic, know your numbers. We have Dr. Fawzia Moin with us today to share a few insights about the topic and also respond to all the queries that have come in. Moving to Dr. Uruj. Assalamu alaikum everyone. It's indeed important for us to discuss why we need to know our numbers, and this is why Dr. Fawzia Moeen, a leading KOL and insulin pump trainer in Pakistan, has come up with a very interactive method of interacting with you all. She'll be answering queries and explaining the same to you. Dr. Fawzia has been working diligently towards creating awareness on diabetes and its management, and she has extensive experience of working with type 1 diabetes patients, not only in Pakistan, but on a global scale as well. Her center, named Diabetes Wellness Center in Lahore as well as in Calgary, has been working towards creating awareness, not only in patients, but in the caregivers as well. So, Dr. Fawzia, we welcome you, and please, we would like you to move forward with the session so that our patients can get information about diabetes and also about managing their glucose levels through a glucose meter. Thank you. Thank you very much, Dr. Rouge and Reda, and I am very grateful to AccuCheck and Roche for giving me this opportunity. We will be talking about know your numbers. Now, the question is why to know your numbers, why it is so important that you should know your numbers. There is an increasing evidence that has always shown that in the past so many years, we have scientific data that has shown that if your postprandial blood sugars are in a good range, यानी कि आपके खाने के 2 घंटे बाद की शुगर अगर आपकी टारगेट रेंज के अंदर है, तो फिर हार्ट डिजीजेस, cardiovascular diseases are decreased tremendously because you are managing your blood sugar levels at a very balanced way, which has been given, the targets which has been given by your professionals to you. So in general, the DCCT trial, the ACCORD trial, and there are so many other trials that have shown the importance of having a balanced blood glucose readings, which decreases the micro and macrovascular complications in the body of a person with diabetes. A very important study that I would like to bring in here in your notice was the ROSO in Praxis study, in which Kempf et al. Evaluated the effect of self-monitoring blood glucose in a 12-week structured SMBG, which is self-monitoring blood glucose, based on lifestyle intervention and glucometabolic and general health parameters. And the results that we saw in this study were amazing, that people lost in weight in inches. They were checking their blood sugar in a proper, educated, structured way. So जो सबसे important चीज है जो हमें देखनी है, और एक और study थी which was called the STEP, which is Structured Testing Program. In तमाम studies से, and with all these studies, what we came to know is कि ब्लड शुगर चेक करने का भी एक तरीका होता है. ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक दफा शुगर चेक की,
10 दिन में एक दफा शुगर चेक की और फिर कहा कि ओ भाई मेरी शुगर तो बहुत अच्छी थी, तो अब मुझे रोज रोज शुगर चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, कि हम ये समझते हैं कि एक दफा शुगर पूरे 10 दिन में या एक महीने में चेक करके अगर शुगर अच्छी है तो हम बहुत अच्छे जा रहे हैं, विच इज रॉन्ग. We need to understand that if we are going to check our blood sugars and take responsibility of our diabetes, कि हमें अपनी डायबिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है और हमने अपनी शुगर्स को खुद से चेक करना है, तो the best thing is to understand a structured glucose monitoring system. Now your treating physician, जो आपके डॉक्टर्स आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको बकायदा एजुकेशन देते हैं, जिसमें फिर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो रोल ऑफ डायबिटीज एजुकेटर्स या डायबिटीज एजुकेटर नर्सेस का आता है. एंड दिस ईयर वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर डेडिकेटेड है नर्सेस को, जिनकी खिदमात को सराहा जा रहा है. तो एक टीम वर्क होता है जिसके जरिए हम पर्सन विद डायबिटीज को सिखाते हैं कि अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कैसे चेक करनी है. अब कैसे चेक करनी है, स्ट्रक्चर्ड क्या है, वो ये है कि आप अगर गोलियां ले रहे हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपको अपनी शुगर को खाने से पहले, खाने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, इस तरह से करके ऑल्टरनेट डेज पे या मुसलसल जैसे आपके फिजिशियन आपको कहे पेयर्ड रीडिंग्स करनी है. चेकिंग इन पेयर्स, लाइक खाने से पहले, खाने के बाद एक दिन, फिर दूसरे खाने से पहले, खाने के बाद दूसरे दिन, फिर खाली पेट रात सोते हुए. तो इस तरह से रीडिंग्स करके आप अपनी टाइम इन रेंज को समझते हैं. अब टाइम इन रेंज है क्या? टाइम इन रेंज एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेशनल कंसेंसस से आया है, और इसमें आपको ये समझाया जाता है कि HbA1c इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव योर HbA1c लेस देन 7, but the most important thing to understand for people with type 1 diabetes and type 2 on insulin, type 2 on oral hypoglycemics, के जो अपनी शुगर की जिनकी बैलेंस नहीं है और वो शुगर के लिए दवाइयाँ या इंसुलिन ले रहे हैं, आपको अपनी ब्लड शुगर को एक रेंज में रखना है. अब रेंज क्या है? 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 70 milligram per deciliter till 180 milligram per deciliter. So if your blood sugar stays within this range of 70 to 180 milligram per deciliter, that is the time in range. And we want around 70% of your total blood glucose readings to be in the time in range structured manner, कि आप अपने आप को पेंडुलम की तरह 70 से 180 के दरमियान सारा दिन रखें, खाली पेट रखें. तो SMBG सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जो आपके हाथ में है, आपको गाइड करेगा कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपका खाना पीना, आपकी एक्सरसाइज, ये तमाम चीजें किस हद तक आपने संभाल ली हैं, बैलेंस कर ली हैं कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत अच्छे से रीडिंग्स आपको आनी शुरू हो जाए. सो सेल्फ मॉनिटरिंग का जो होल कॉन्सेप्ट है इस वक्त दुनिया में, और जो तमाम स्टडीज में जितनी भी बड़ी बड़ी स्टडीज हो रही हैं इस वक्त दुनिया में, दे आर ऑल यूजिंग ग्लूकोमीटर्स to have an impactful results, to give us impactful results. And again मैं यहाँ पे एक बात दोबारा कहना चाहूंगी कि the impactful result of SMBG, आपकी रोजाना ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के जो एक रिजल्ट है, वो उसी वक्त आपको फायदा दे सकता है जब आप एक प्रोग्राम में हो, जब आप अपनी रीडिंग्स चेक करके अपने डॉक्टर को दे रहे हो रोजाना या हर 2 दिन बाद या हर 3 दिन के बाद. क्योंकि जब तक आप रीडिंग्स नहीं देंगे, आपका डॉक्टर कैसे आपके साथ चलेगा? अगर आप रीडिंग्स जमा करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो वो इतनी हेल्पफुल नहीं है. आपको वो अपनी ट्रीटिंग टीम को भी भेजनी है कि भाई मेरी रीडिंग्स ऐसी हैं, मेरी इंसुलिन, मेरी गोलियां, मेरा डाइट प्लान, मेरा एक्सरसाइज प्लान, इन तमाम चीज़ों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं. सो अ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन अबाउट SMBG इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और जैसे मैंने कहा कि डायबिटिक एजुकेटर्स एंड डायबिटिक एजुकेटर नर्सेस प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस, along with that person
who is taking responsibility. SMBG self monitoring of blood glucose में आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है. Your physician and the person whose blood sugar readings are not in balance, in not very good control, they need to sit and agree upon something. अगर आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के इस बात को क्लियर कर लें कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ दिन में 3 दफा 4 दफा शुगर चेक करने के लिए, मैं आपको हर दूसरे दिन शुगर रीडिंग्स भेजूंगा या भेजूंगी, तब कहीं जाके आपकी शुगर चेक करने का जो ये तरीका है ये आपको फायदा दे सकता है. खुद ही से शुगर चेक की, खुद ही से किताब में लिख ली और बैठ गए, टेंशन ले ली कि भाई मेरी तो शुगर ही ठीक नहीं हो रही, इस तरह से काम नहीं होता. टाइम लगता है दवाइयों को, लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए. सो 90% ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज with the person with diabetes, that they should change their lifestyle according to the blood sugar readings that they are seeing, and they should take all the necessary precautions which has been taught by their treating physician. There are a lot of consensus कि आपने अपनी शुगर कैसे चेक करनी है. हमसे लोग यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब शुगर चेक कैसे करें. सो शुगर चेक करने का जो तरीका मैंने आपको कहा कि खाने से पहले, खाने के बाद, हर दूसरे दिन या रोजाना, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल रिजल्ट नजर आए. इतना याद रखिए कि जब आप अपनी ब्लड शुगर उंगली से प्रिक करके आप चेक करते हो, वो 5 मिनट की विंडो होती है, वो 5 मिनट की खिड़की होती है जिससे कि आप अपनी ब्लड शुगर को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर शुगर की रीडिंग्स कैसी जा रही हैं. अगर आप अपनी ब्लड शुगर को चेक नहीं करेंगे तो आप झांकेंगे कैसे, वो खिड़की आपको मिलेगी कैसे. सो 5 मिनट में खून के अंदर रीडिंग्स थोड़ी सी तब्दील हो जाती हैं. तो ये मत समझिए कि आपने एक दफा शुगर चेक कर ली अगर महीने में और हफ्ते में और वो बड़ी अच्छी आ गई तो आप खुश हो गए. ऐसा नहीं है. आपको अपनी शुगर अच्छे से बार बार चेक करने की जरूरत है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, और जिनकी शुगर बहुत अच्छी है, जो एक्सरसाइज और डाइट से अपने आप को रख रहे हैं, या जिन्होंने बहुत मिनिमम दवाई खा रहे हैं, वो अपनी हफ्ते में 1 से 2 दफा चेक कर सकते हैं. लेकिन जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट में है, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो गोलियां हो, उन्हें अपने डॉक्टर से मशवरा करके ये देखना होता है कि उनकी शुगर रीडिंग्स को किस तरह से मॉनिटर किया जाए. सो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड मेथड था अबाउट सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज. अभी आप जब अपने हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आप हमसे मजीद और क्या क्वेश्चन कर रहे हैं. इसमें हैंडलिंग ऑफ ग्लूकोमीटर्स बहुत ज़रूरी है. यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल योर ग्लूकोमीटर, क्योंकि अगर ग्लूकोमीटर्स की या मशीन की जो आपकी शुगर का आला है उसका आप एहतियात नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी आपकी शुगर रीडिंग्स खराब आ सकती हैं. बहुत से सवालात हैं जो ऑलरेडी हमें नजर आ रहे हैं कि हमसे पूछे जा रहे हैं, तो मैं अपने सेशन के क्वेश्चन आंसर सेशन में उनके जवाब दूंगी. आई थिंक कि हमें इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए कि सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज एक ऐसा टूल है जो हमें अपने जिस्म की हिफाजत करने में मदद देता है, और हम अपने जिस्म की पेचीदगियों को और कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं अगर हम ऑन टॉप ऑफ थिंग्स रहें बाय चेकिंग विद अ गुड क्वालिटी ग्लूकोमीटर, बिकॉज अ गुड क्वालिटी ग्लूकोमीटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एक अच्छी क्वालिटी का अगर ग्लूकोमीटर आपके पास है तब हम उस पर रिलाई कर सकते हैं. हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये अच्छी क्वालिटी का ग्लूकोमीटर है, इसकी स्ट्रिप्स की एफिकेसी अच्छी है. ये तमाम बातें अगर आप जहन में रख के अपनी शुगर मीटर्स की परचेजिंग करें तो वो आपको हेल्प आउट करती हैं इन द लॉन्ग रन. सो आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स. आपके पास जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको साथ साथ जवाब भी दूंगी. रिदा, इट्स ऑल योर्स नाउ. Thank you so much, Dr. Fawzia. So we have a lot of questions coming in. We'll start off with when should we check our blood sugar level? That's a very good question, Rida. Thank you so much. हमें अपनी ब्लड शुगर कब चेक करनी चाहिए? अब इसमें भी बहुत से पॉइंट्स हैं.
अगर आपको अपने अंदर कोई तब्दीली फील हो रही है, अभी आपको अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो फौरन सबसे पहले अपने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो दोनों चीजें चेक करें। उसमें होता ये है कि आपकी लो शुगर जो है वो कभी कभी डायरेक्टली आपको नहीं पता चलता, हाथ नहीं कांपते, दिल नहीं घबराता, भूख नहीं लगती, बट आपका मूड चिड़चिड़ा होने लग जाता है, आपको धुंधला नजर आने लगता है, आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या चीज है जो मैं सही तरह से मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेल। उस वक्त आपको शुगर चेक करना बहुत जरूरी है और शुगर चेक करके एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर आप इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी पे हैं, दिन में 3 से 4 इंसुलिन पे हैं, या बेसल बोलस पे हैं, या आप खैर जो इंसुलिन पंप पे हैं वो तो सेंसर्स के साथ हैं, तो उनकी तो ऑलरेडी शुगर 288 टाइम्स पर डे चेक हो रही है। हमें टाइम इन रेंज को कैलकुलेट करने के लिए और एक आइडिया लेने के लिए हमें अगर 4 टाइम्स पर डे शुगर मिल जाए तो वो एक हमें बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प करती है कि हम देख सकें कि आप मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे किस रेंज में रहते हैं। जी रेदा। Great. So the next question is, how do we manage glucometers in hot weather? Again, a very practical and a very nice question, बहुत important है। हमारी हैंडलिंग ऑफ ग्लूकोमीटर्स जो है, या हमने जो ग्लूकोमीटर्स को जिस तरह से चेक संभाल के रखना है, उसमें बड़े पॉइंट्स हैं। उन सब पॉइंट्स को मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर वन ये है कि जो ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स हैं, सबसे पहले आप उनकी एक्सपायरी चेक करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर एक्सपायरी गुजर गई है और आप फिर भी वो स्ट्रिप्स चेक कर रहे हैं तो आपकी शुगर रीडिंग्स ठीक नहीं आएंगी। सो अपने ग्लूकोमीटर के अंदर जो बोतल है जिसके अंदर स्ट्रिप्स रखी हैं, सबसे पहले बाहर उसका आप एक्सपायरी डेट चेक कीजिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो बॉटल है उसका ढक्कन टाइटली बंद है या वो खुला रह गया है। अगर तो आपकी स्ट्रिप्स की बोतल का ढक्कन खुला रह जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इससे आपको ये प्रॉब्लम होगी कि मॉइस्चर जाके स्ट्रिप्स की एफिकेसी को खराब कर देगा। सो हमेशा ये देखें कि आप स्ट्रिप्स को निकालते ही ढक्कन को टाइटली बंद कर दें। दूसरा जो बड़ा कॉमन सी बात है कि हम कहीं जा रहे हो तो मरीज ऐसा करते हैं कि वो 2-3 स्ट्रिप्स निकाल के किसी दूसरी बोतल में डाल लेते हैं और वो बोतल लेके किसी और यानी कि या तो वो टिश्यू पेपर में रैप कर लेते हैं या वो बोतल से निकाल के उसकी अपनी ओरिजिनल बॉटल निकाल के किसी और चीज में कैरी करते हैं। तो ये बात भी ठीक नहीं है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रिप्स को उसकी बोतल में से एक टाइम पे एक ही निकालनी है चेक करने के लिए। ग्लूकोमीटर को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट सनलाइट में है तो उससे आपको बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट रीडिंग्स आएंगी, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ग्लूकोमीटर क्या कोई भी मशीन जो सेंसिटिव होती है वो खराब हो जाती है। सो आपका जो टेम्परेचर है वो बिलो 5 डिग्री सेल्सियस नहीं जाना चाहिए या अबव 30 डिग्री सेल्सियस नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी में ग्लूकोमीटर रखते हैं कि आपने ट्रैवलिंग के दौरान शुगर चेक करनी है, तो कभी भी डैशबोर्ड के ऊपर ग्लूकोमीटर मत रखिए, कभी भी ऐसी जगह पे मत रखें कि उसको डायरेक्ट हीट लगे। उसको ग्लव कंपार्टमेंट में या अंडर द सीट रखें, या बेस्ट है कि आप अपना एक बैग कैरी करें जो इंसुलेटेड होता है, उसमें बर्फ रखने की जरूरत नहीं है ग्लूकोमीटर के लिए, लेकिन आप ग्लूकोमीटर को उसमें टेम्परेचर कंट्रोल के लिए रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। सेकेंडली, आप अगर अपनी शुगर चेक कर रहे हैं और आपके पास पानी पड़ा है और कहीं चंद पानी ग्लूकोमीटर पे गिर जाता है तो वो भी मीटर को खराब कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पे शेयर करनी है वो ये है कि आपने अपने ग्लूकोमीटर का जो लेंसिंग डिवाइस है जिससे कि आप प्रिक करके अपनी शुगर को चेक करते हैं, उसको कभी भी आपस में एक ही घर में मुख्तलिफ अफराद ने शेयर नहीं करना। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने शेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि आपकी सुई सिर्फ आपके लिए है, लेंसेट वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना तो काफी ज्यादा हमारे मुल्क में जो जिसे कहते हैं ना कि पता ही नहीं है कि हेपेटाइटिस है और कोई प्रॉब्लम है, तो वो ब्लड बॉर्न डिजीजेस में चली जाती है। आप अपने जो लेंसेट्स हैं
उनको जब यूज करते हैं तो अगर आप दिन में 4 दफा शुगर चेक कर रहे हैं तो उसको डेली इस्तेमाल करके फेंक दीजिए, या अगर आप 2 दफा कर रहे हैं दिन में तो फिर 2 दिन या 3 दिन के बाद उसको जरूर चेंज कर ले, क्योंकि उसकी टिप पे फिर खून जम जाता है और उसकी टिप बहुत नाजुक होती है लैंसेट की। बार बार प्रिक करने के बाद वो ऐसे रफ एजेस हो जाते हैं जिससे आपको पेन हो सकता है। सो टू कीप अ पेन फ्री sugar checking process, you need to change your lenses very frequently. Now to throw the lenses, कि आपने वो जो sharp needle lancet है उसे फेंकना कैसे है। Sharp containers are very good. अगर आपके पास sharp containers नहीं हैं तो आप एक पानी की प्लास्टिक की बोतल लीजिए और अपने लेंसर्स उसमें इकट्ठे करते जाएं और उसको आप ढक्कन लगा के रखें, और जब वो बोतल प्लास्टिक की भर जाती है तो आप ढक्कन टाइट बंद करके उसको फिर फेंक दीजिए गार्बेज में। इस तरह से जो गार्बेज इकट्ठा करने वाली टीम होती है हमारी, उनके हाथों में सुई नहीं चुभती और अगेन बीमारियां नहीं जाती। सो these are some common precautions that we can take to protect our glucometer, कि हमारे ग्लूकोमीटर मशीन और लेंसेट्स को हमने किस तरह से रखना है। जी रेदा। Okay, so the next question is related to something you've shared, Abhi. The question is that needles to हम नहीं share कर सकते, it's not hygienic, but can we share meters? देन अगेन एक बात जो हम लोग कहते हैं कि मीटर्स भी शेयर ना करें, इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। हम तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि जो आप नेल कटर अपने नाखून काटने के लिए यूज करते हो, जो स्पेशल चौड़े नेल कटर होते हैं, वो भी किसी के साथ शेयर ना करें। सो अपनी हाइजीन को और अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए द बेस्ट थिंग इज नॉट टू शेयर एनी डिवाइस विद एनीवन. But if you have to, then you have to be very, very careful, extremely careful. Okay, so the next question is pregnancy में sugar check करनी होती है, हाँ या नहीं, और कितनी दफा? प्रेगनेंसी में तो शुगर बहुत ज़्यादा चेक करनी होती है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ या अगर आप पहले से डायबिटिक हैं और प्रेग्नेंट हो गई हैं, तब तो आपको प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग होती है कि आपका HbA1c शुड बी इन अ वेरी गुड बैलेंस कंट्रोल वे। यू आर 70 नहीं 80 to 90% आप टाइम इन रेंज में आपकी शुगर लेवल्स हैं। और आपके अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो, टाइप 1 हो या टाइप 2 है और आपकी शुगर लेवल्स इतने अच्छे नहीं है, फिर भी आपको इंसुलिन तो यूज करनी है। तो इंसुलिन लगाते हुए आपको अपनी इंसुलिन की डोज एडजस्टमेंट के लिए खाने से पहले, खाने के 2 घंटे के बाद, रात को सोते हुए, रात को 3 बजे, सुबह खाली पेट। सो प्रेगनेंसी में तो SMBG की इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसको हम 7 पॉइंट SMBG कहते हैं, कि हम एटलीस्ट 7 दफा दिन में चेक करें इनिशियली, कि हमें अंडरस्टैंड हो कि ग्लूकोज एक्सकर्जन्स या ग्लूकोज का जो कर्व है वो कैसे चल रहा है, और हम अपनी बेसल बोलस इंसुलिन को किस तरह से एडजस्ट करें। हम क्या खाने लगे हैं, खाने से पहले शुगर कितनी है, हमने अगर ये खाना खाना है तो हमें इसके लिए बोलस इंसुलिन कितनी चाहिए। तो खाने से पहले की शुगर चेक करना तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, डायबिटिक प्रेग्नेंट फीमेल्स में। और खाने के 1 घंटे बाद और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर्स उनके लिए मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। सो प्रेगनेंसी इज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो देन अदर SMBGs। जो नॉर्मल SMBGs हैं उनसे हट के प्रेगनेंसी में हमें बहुत इंटेंसिव और एग्रेसिव सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करना पड़ता है, ताकि बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी हो और मदर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर अटैक भी बहुत खतरनाक है प्रेगनेंसी में, और हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर अटैक भी विद कीटोन्स बहुत खतरनाक है प्रेगनेंसी में। अच्छा, किसी ने शेयर किया है कि मेरी अम्मी डायबिटिक हैं और उनका हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो उनको कितनी बार अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए? जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर हमारे खाने के बाद की ब्लड शुगर रीडिंग्स 180 से नीचे रहती हैं
और एज को भी हम देखते हैं, जो बहुत अबव 80 इयर्स की एज है जिनकी, उनको हम उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल या HbA1c की रेंज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन इतनी भी डिफरेंट नहीं होती कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाए। हमें जो चीज देखनी है वो ये कि खाने के 2 घंटे बाद की पोस्ट प्रांजियल ब्लड ग्लूकोज शुड बी इन अ वेरी नाइसली कंट्रोल्ड रेंज, ताकि उनके हार्ट के ऊपर मजीद कोई कॉम्प्लिकेशन हाई ब्लड शुगर्स की ना आए। उनको कम से कम खाने के बाद की शुगर्स दिन में 2 दफा तो जरूर ही चेक करनी चाहिए, और अगर द पर्सन विद डायबिटीज इस बात पे एग्री करता है तो हर खाने के बाद होनी चाहिए। ओके। किसी ने लिखा है कि मेरी रीडिंग हाई होती है मगर मैं फिट हूँ, तो इसमें क्या करना चाहिए? ये मृदा बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये जो हमारी एजम्पशंस हैं, ये जो हम एज्यूम करते हैं, व्हाट वी एज्यूम इज हाउ डू वी फील। व्हाट हैपेंस इज कि ब्लड शुगर रीडिंग्स, कुछ लोग कहते हैं इफ माय ब्लड शुगर इज हाई, मेरी शुगर हाई है तो देन आई विल नो, मुझे पता चल जाएगा, विच इज रॉन्ग, बिकॉज समटाइम्स हाई ब्लड शुगर सिम्टम्स and signs and low blood sugar symptoms and signs are the same. How would you assess if you are going into hypo and you have the same you feeling the same things which you feel when you have high, and you inject thinking that my sugar is high, and you give yourself extra shot of insulin without checking your blood sugar, you are leading yourself into a coma situation. आप अपने आप को बेहोशी की तरफ डालने लगे हो। तो जब भी आपकी बॉडी ये फील कर रही हो कि कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज पहले अपनी शुगर चेक करके ये देखें कि आप हाई में हैं कि लो में। कभी ये मत समझें कि अगर आपकी शुगर हाई होगी तो आपको पता चल जाएगा। बॉडी का डिफेंस सिस्टम, अलार्म सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है आपका, वो वक्त के साथ साथ विद परसिस्टेंट, जब आपकी मुसलसल शुगर रीडिंग्स बहुत हाई जा रही हैं, तब वो आपको रॉन्ग सिग्नल्स भी देगा। सो अपने नर्वस सिस्टम को देखिए, उसको चेक करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी शुगर को ग्लूकोमीटर से चेक करें। Great. So the जी next बेटा। question is कि अगर blood sugar level कम हो, low हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती हैं कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जो शुगर होती है वो लो शुगर होती है, राइट। और आपकी अगर शुगर लो आपको लग रही है, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो शुगर अटैक्स। एक एक्चुअल लो शुगर है व्हेन द शुगर इज गोइंग बिलो 70, और एक सूडो हाइपो है, यानी कि आपकी शुगर है तो 150 पे, 140 पे, पर आपको वो लो फील हो रही है। तो इन दोनों कंडीशंस का फर्क देखने के लिए यू हैव टू चेक योर ब्लड शुगर। नंबर 1, ऑलवेज चेक योर ब्लड शुगर। अगर आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जा रही है तो प्लीज टेक समथिंग स्वीट। 15 ग्राम ऑफ कार्ब जो आप ले सकते हैं। अपनी शुगर को डिपेंड करता है कि अगर आपके सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं, हाथ कांप रहा है, दिमाग चिड़चिड़ा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो फौरी तौर पे एक टॉफी को चबा लें, चॉकलेट नहीं लेनी। आप कोई जूस पी लें फौरन। Anything that is quick carbohydrate will be very helpful for you. आप इस तरह से क्विक कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर सकते हैं, और फिर 15 मिनट के बाद आप दोबारा अपनी शुगर को ग्लूकोमीटर से चेक करके देखें कि आपकी शुगर बेहतर हुई है या नहीं। अगर बेहतर नहीं हुई तो फिर दोबारा से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें। और अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको थर्ड पार्टी असिस्टेंस की जरूरत है। सो योर फैमिली मेंबर मस्ट कम इन एक्शन। किसी को अलर्ट कर दें कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपके पास कोई हो, ताकि वो आपकी ब्लड शुगर्स को चेक करे और आपको जूस या मीठा टाइमली खिला सके। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम लैब में अपनी शुगर टेस्ट कराते हैं वर्सेस हम जब मीटर से खुद चेक करते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस, ऐसा क्यों होता है?
एक्चुअली जो लैब से शुगर चेक होती है वो प्योर ब्लड में हो रही होती है, वो आपकी क्या कहते हैं उसको प्रोसेस करके प्लाज्मा में उसकी प्लाज्मा से हम उसकी रीडिंग्स को लेते हैं विच आर मोर एक्यूरेट एक्चुअली। लेकिन आईएसओ का जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है उसके मुताबिक अगर 95% ऑफ द ब्लड शुगर जो है it should fall within plus minus 15 milligram per deciliter। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 ml से नीचे जा रहा है, या it should be within plus minus 15% at blood glucose or more than 100 milligram। कहने का मतलब ये है कि within 10% of the lab values less than 100 milligram and within 20% for the values above 100 milligram। तो ये फर्क जो है ये accepted है। Okay. So just a few questions left. कोई किसी ने पूछा है कि उनकी उंगलियों में जख्म हो जाएंगे अगर वो अपना बार बार ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, तो किस तरह उसको ख्याल रखा जाए इस चीज का? अगेन ये हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है हमारे पर्सन विद डायबिटीज़ और पीपल विद डायबिटीज़ से, कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी दफ़ा शुगर चेक कराई आपने, हमारी उंगलियां छलनी हो गई, हमारी उंगलियों में सुराख हो गए। तो आई डू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। ये ज़्यादा उंगलियों में दर्द होना, छलनी होना, ये सब चीज़ें इसके भी बड़े फैक्टर्स है। एक आपकी साइकोलॉजी, कि अगर हर इंसान को नीडल फोबिया होता है, हर इंसान प्रिक से डरता है, चाहे वो सिरिंज की हो, सुई की हो, या वो लैंसिंग डिवाइस लैंसेट्स की हो। तो पहले तो आपको अपने आप से ये डिस्कशन करनी है, अपने आप को ये समझाना है कि ये जो छोटी सी पिन चुभती है, इसके चुभने से जो मुझे रिजल्ट आएगा उससे मैं अपने आप को कितना अच्छा रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, मैं अपनी टाइमली मैनेजमेंट कितनी अच्छी कर सकता हूँ ताकि डायबिटीज मुझे जिंदगी भर कोई तकलीफ ना दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको अपने ब्रेन को देना होता है। सेकेंडली, अगर आप अपने लैंसेट को टाइमली चेंज करेंगे, सही टाइम पे बदल देंगे, तो जो नया लैंसेट होता है वो इतना बारीक और इतना स्मूथ होता है कि उससे दर्द नहीं होता। ये ज्यादा दर्दें तब शुरू होती हैं जब आप एक ही लैंसेट को 1 महीना इस्तेमाल कर रहे हो, तो जख्म भी हो जाएंगे, तकलीफ भी होगी, क्योंकि सुई सारी ऊपर से टूट गई है और आप फिर भी उसी सुई को, उसी लैंसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप अपने लैंसेट्स को जल्दी जल्दी चेंज करें और आप अपने आप को ये समझा लें कि ये छोटी सी प्रिक जो है मुझे आने वाले वक्तों में किडनी प्रॉब्लम से, मेरे गुर्दों को बचा रही है, मुझे हार्ट अटैक से बचा रही है, तो ये छोटी सी प्रिक कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इंसान है, तंग आ जाता है बंदा। आप अपने आप को 1-2 दिन का ब्रेक अपने डॉक्टर से बात करके दे सकते हैं। या हमने कोई सारी उम्र थोड़ी आपसे चेक कराना होता है बार बार, हमें तो एक खास 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन का टाइम देखना होता है। जब चीजें बेहतर होती हैं तो हम आस्ता आस्ता आपकी चेकिंग को कम करते चले जाते हैं। दूसरी बात, आप अपने उंगलियों के पोरों की मसाज जरूर किया करें, चाहे आप ऑलिव ऑयल ले लें, चाहे आप वैसलीन ले लें। रात को बैठ के आप अपने हाथों की, उंगलियों के पोरों की मसाज मुसलसल किया करें ताकि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहे, उसमें प्रिक आसानी से हो। और प्रिक करने के भी तरीके होते हैं। नाउ अगर आप मेरे हाथ को गौर से देखेंगे तो अपनी उंगली के हियर इज द पेन, अपनी उंगली के बीच के हिस्सों में, बीच में ये जो आपके पोर हैं, यहाँ आपने कभी भी क्लिक नहीं करना। अक्सर लोग यहाँ क्लिक करते हैं जिससे कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आपने हमेशा अपनी उंगली की साइड के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप अपनी उंगली को इस तरह से अंगूठे से मोटा कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं और साइड के ऊपर हल्का सा प्रिक करते हैं नाखून से दूर रख के, तो उस प्रेशर की वजह से आपको एक अच्छा सा ब्लड का छोटा सा, अब तो लेटेस्ट ग्लूकोमीटर्स में बिल्कुल मिलीमीटर के हिसाब से बिल्कुल छोटा सा ब्लॉक ब्लड का चाहिए। आपने बहुत लैंसेट को 4 या 3 के ऊपर नहीं रखना। नंबर जो आपके जो लैंसिंग डिवाइस के ऊपर आपका नंबर लिखे होते हैं, आप उसको 1 और 2 के बीच में या 2 के ऊपर रखें। अगर आपने डिवाइस को 4 पे रखा हुआ है तो वो सुई बहुत अंदर तक जाएगी, तो जाहिर बात है आपको पेन होगी। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन
कि ग्लूकोमीटर को इस्तेमाल कैसे करना है, वो अगर आप अपनी डायबिटीज़ एजुकेटर्स के साथ बैठ के या खुद से स्टडी करके या अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ये स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन लेंगे तो फिर आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। जी रेता। Okay, so the next question is the protein diet favorable for patients with diabetes? वेल इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, लेकिन चलें मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा कीटो डाइट के ऊपर आजकल आ रहा है कि जी कीटो डाइट बहुत अच्छी है, कीटो डाइट बहुत अच्छी है। टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए कीटो डाइट इज़ वेरी डेंजरस, लेट मी टेल यू दैट, क्योंकि कीटो डाइट का मतलब है कि आप अपनी बॉडी में कीटोन्स को बना रहे हैं, अपने फैट को कीटोसिस में ला के फैट को बर्न कर रहे हैं, खुराक कार्बोहाइड्रेट से नहीं दे रहे, ताकि जिस्म की चर्बी बर्न हो और बर्न होके कीटोन्स यूरिन के जरिए निकलें और आपका वेट कम हो। नाउ कीटोसिस इज वेरी डेंजरस फॉर टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 में अगर इंसुलिन मिस हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए, या वो जैसे बच्चे अक्सर करते हैं कि जी एक दिन इंसुलिन में बहुत नागा कर लिया, बेजल नहीं लगाई, बोलस नहीं लगाई, तो वो एकदम से जाते हैं कीटोसिस की तरफ, और अगर उनकी शुगर कंट्रोल ना हो और वो कीटो डाइट पे हो तो सीधा इमरजेंसी में लैंड करते हैं विद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। सिमिलरली हमारे टाइप 2 डायबिटिक्स जो हैं, काफ़ी दवाइयाँ अब हमारी ऐसी आ गई हैं जो कि बहुत फेवरेबल है टाइप 2 डायबिटीज़ में, लेकिन वो जिस्म के अंदर कीटोसिस का थोड़ा सा एलिमेंट लाती हैं। तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं और आप कीटो डाइट के ऊपर भी हैं और आप वो दवाइयाँ भी खा रहे हैं जो बॉडी के अंदर ये सब कुछ कर रही हैं, तो फिर अगेन आप अपने आप को कीटोसिस की तरफ लेके जा रहे हो, और कीटोसिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर लंग्स, फॉर योर किडनीज। आपने अपना वाटर इनटेक तो वैसे ही 12 से 14 ग्लास रखना होता है, चाहे आप इंसुलिन पे हो या आप गोलियों पे, और हमारे लोग पानी कम पीते हैं, और कम पानी पीने से हाई प्रोटीन डाइट के साथ सबसे ज़्यादा आपकी किडनीज इफेक्ट होती हैं। अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से मशवरा किए बगैर प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट एनी हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट आप लोगों ने नहीं लेनी जब तक कि आपको आपका डाइटिशियन किसी ना किसी लेवल पे गाइड ना कर दे। Okay, so the next question is how many times a day should a person with type 2 diabetes treated on tablets check his or her blood sugar level? अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। टाइप 2 डायबिटिक जो गोलियों के ऊपर हैं, अगर उनकी शुगर रीडिंग्स अच्छी नहीं है, उनकी HbA1c 8% से ज़्यादा है, और उनको हमने बिलो 7 लाना है। एट 8 तो मैंने वैसे कहा, हमारे लोगों की तो मेजॉरिटी की 10 से ऊपर होती है HbA1c। सो वो लोग इन जनरल जिनकी शुगर लेवल्स बैलेंस नहीं है, वो गोलियों के ऊपर है, उन्हें चाहिए कि वो कम से कम दिन में एक दफ़ा खाने से पहले, खाने के बाद, फिर अगले दिन खाने से पहले, खाने के बाद। नाउ देयर आर मैनी डिफरेंट, बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका जो है वो बड़ा खूबसूरत है कि आप दिन में एक दफ़ा चेक करो। जैसे पीर के दिन आपने खाली पेट की, मंगल को नाश्ते के 2 घंटे बाद, बुध को दोपहर खाने से पहले, जुमेरात को दोपहर खाने के बाद, जुमे को रात खाने से पहले, हफ्ते को रात खाने के बाद, और संडे को रात बेड टाइम पे या रात 3 बजे। अगर आप इस तरह भी एक हफ्ते में शुगर चेक करते हैं, जिसे हम स्टेप वाइज मैनर कहते हैं, तो ये भी आपको बड़ा अच्छा टाइम इन रेंज दिखा सकता है, और आपको चूंकि एक दफ़ा चेक करनी है तो आपको इतना बुरा भी नहीं लगेगा। बट आइडियली इट हैज़ टू बी, जिसको हम बड़ी टेस्टिंग इन पेयर्स कहते हैं, कि आप खाने से पहले, खाने के बाद जरूर अपनी शुगर चेक करें। जी रेदा। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी वो ये है कि आप अगर आपको अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट की शुगर आपको अपनी कभी बहुत ज़्यादा लग रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इंसुलिन या दवाई को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी खाली पेट शुगर नहीं बैलेंस हो रही, तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी रात को सोते वक्त की शुगर चेक करें, फिर आप अपना बेड टाइम स्नैक लें, उसके बाद रात को 3 बजे उठ के अपनी शुगर चेक करें, प्रोवाइडेड कि आपने रात 8:30 बजे तक खाना खा लिया हो।
रात 3 बजे अपनी शुगर चेक करें और फिर आप अपनी शुगर करें चेक सुबह के वक्त खाली पेट 6 से 7 बजे। जब आप ये 2-3 शुगर्स को चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि रात सोते हुए आपकी शुगर कहाँ थी। रात 3 बजे क्या आपके जिस्म में शुगर नीचे जा रही थी, नॉर्मल थी या हाई थी, और सुबह खाली पेट की शुगर क्या है। तो जब ये रीडिंग्स आप अपने डॉक्टर को जाके देते हैं तो उन रीडिंग्स को इंटरप्रेट करके, क्योंकि देखें रीडिंग्स लेना एक बात होती है और रीडिंग्स को समझ के एक्शन लेना दूसरी बात होती है। तो आप अपने डॉक्टर को, अपने डायबिटीज एजुकेटर्स को मुसलसल अपनी रीडिंग्स भेजें कि वो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करके आपकी डोज को एडजस्ट कर सकें। Thank you so much, Dr. Fauziya. Next question is, I am on both oral and insulin. My level is around 110 to 130, but my HB1AC is 7.5. देखिए जी, वही वाली बात आ गई टाइम इन रेंज की। अब दो लोगों की HbA1c 7 या 7.5 हो सकती है, पर दोनों की ब्लड शुगर एक्सकर्जन्स, जो खून में बहाव है शुगर का, वो टोटली डिफरेंट हो सकता है। एक शख्स है जो 7% HbA1c के ऊपर रात को कई दफा डिप करता है, शुगर लो होती है और फिर उसके बाद उसकी शुगर जो है वो ऊपर जाती है लिवर से जब एक्स्ट्रा शुगर निकले या अगर आपने हाइपो ट्रीट कर लिया हो। और एक शख्स है जिसकी शुगर नीचे नहीं होती, वो बैलेंस रहती है, लेकिन कभी कभी वो ऊपर भी जाती है और फिर वो बैलेंस हो जाती है। तो 7% या 7.5% HbA1c ये बता रहा है आपका, ये जो इस सवाल में आपने कहा कि वो कहते हैं कि जब मैं चेक करता हूं तो अच्छी है, HbA1c ज्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि उनका टाइम इन रेंज ठीक नहीं है। उन्हें अपनी 7 पॉइंट SNBG एक हफ्ते कम से कम चेक करके ये देखना चाहिए कि उनकी ऑन एन एवरेज शुगर कैसी चल रही है। एक या दो दफा की चेकिंग से ये बात पता नहीं चलेगी। एंड डेफिनेटली उनकी फास्टिंग्स में भी प्रॉब्लम है कहीं कहीं, और उनकी रैंडम्स में भी प्रॉब्लम है, तभी 7.5 है। Okay. So the next question is fasting blood glucose levels for diabetic kids. हृदय, ये क्वेश्चन बहुत वास्ट है, लाइक इसकी ना डायमेंशंस बहुत वास्ट है। किड्स की हम देखिए बिलो 10 के जो बच्चे होते हैं उनको हम बहुत, या बिलो 9 के, उनको हम बहुत बहुत टाइट कंट्रोल या बैलेंस नहीं देते। उनकी ग्रोथ हो रही है लेकिन हम उनको बहुत हाई शुगर्स भी नहीं देते क्योंकि वो भी उनके लिए डेंजरस है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी फास्टिंग्स 120 तक रहें, 80 से 120 तक रहें, और उसके बाद वो जैसे ही 10 इयर्स एंड अबव क्रॉस करते हैं, एडोलेसेंस में जा रहे होते हैं, देन वी गो इनटू अ वेरी टाइट कंट्रोल के उनकी बिलो 100 ही रहे फास्टिंग। लेकिन 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों की हम फास्टिंग्स को 120 तक एक्सेप्ट करते हैं। और छोटे, उससे भी छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए फिर पीडियाट्रिक जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स हैं जो बच्चों को देख रहे होते हैं, वो बच्चों की पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके उनकी ग्रोथ और उनकी बाकी चीज़ों को देखते हुए वो फिर इंडिविजुअल ब्लड शुगर रीडिंग्स को मैनेज करते हैं। दो बातें यहाँ याद रखने की हैं कि बहुत छोटे बच्चे और बहुत बुजुर्ग लोग, इन दोनों को टाइट कंट्रोल हम नहीं देते। बुजुर्ग का मतलब है 80 से ऊपर हो, बेड रिडन हो, खुदा न खास्ता फॉलेज हुआ हुआ है और वो किसी भी वजह से बिस्तर पे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो उनकी शॉर्ट है। तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो हमें देखनी होती हैं कि 80 साल से ऊपर के लोग और बहुत छोटे बच्चे, इनको हम टाइट ब्लड शुगर रीडिंग्स या HbA1c टारगेट्स नहीं देते। लेकिन बच्चों में हम ये भी नहीं करते कि हम उन्हें कहें कि जी वो हर वक्त 200 से ऊपर ही रहें, 250 से ऊपर रहें, ऐसा भी नहीं है। Okay. So last few questions. What is the best place on the finger to prick? Of that I just mentioned, but I will mention again कि आपकी उंगली में ये जो आपके बीच के पोर हैं, यहाँ पे कभी भी प्रिक नहीं करना। हमने हमेशा उंगली की साइड पे, नरम वाली जगह पे, साइड पे अंगूठे से ये नाखून के
कोने से दूर रह के हमें इधर से इधर यहाँ पे प्रिक करना होता है। दोनों साइड्स पे हम प्रिक कर सकते हैं। एक ही उंगली एक ही पॉइंट को बार बार प्रिक नहीं करते। वी हैव टू कंटिन्यूसली चेंज द साइड। Okay, so we're on our last question now. Can we keep a glucometer in the fridge? Yeah, that is something I forgot to mention. Thank you so much. फ्रिज में नहीं रखना, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे ग्लूकोमीटर को नहीं रखना, और मेजॉरिटी रखती है। मजे की बात यह है कि मेजॉरिटी रखती है। मेरे पास एक दफा एक केस आए, तो वो अपने साथ एक पूरा वो इंसुलेशन बॉक्स होता है, पैक होता है, जिसके अंदर ठंडी रहती है चीजें, आप आइस पैक रख दो, इंसुलिन रख दो। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बड़े फख्र से खोल के जिप, उन्होंने कहा देखें डॉक्टर साहब, मैं अपनी सारी चीजों को कितनी एहतियात से रखता हूँ, और वो उसमें इंसुलिन भी थी, उसमें गोलियां भी थी, उसमें ग्लूकोमीटर भी था। तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा आपको तभी प्रॉब्लम आ रही है कि आप ग्लूकोमीटर को बहुत ठंडी जगह पे रख देते हैं। मीटर को आप अपने रूम टेम्परेचर पे रखो, एंड बिलो 5 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 30 डिग्री सेल्सियस। और पाकिस्तान की गर्मी तो 30 से 50 तक जाती है। सो वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल गर्मियों में खास तौर पे, कि हम अपने ग्लूकोमीटर्स को किसी ठंडी जगह पे, कमरे में, ठंडी जगह का मतलब है कमरे के अंदर छांव वाली जगह में, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो, जहाँ कमरा थोड़ा सा ठंडा हो, एसी वाले कमरे में, या कूलर वाले कमरे में भी ख्याल कीजिएगा। अगर डेजर्ट कूलर लगा हुआ है और आप अपना ग्लूकोमीटर खोल के, स्ट्रिप की बोतल खोल के बड़ी देर तक बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, और आप बड़े आराम से स्ट्रिप निकालते हैं और बड़ी देर वो स्ट्रिप की बोतल आपके जो डेजर्ट कूलर, वाटर कूलर कमरे में चल रहा है उसमें खुली है, तो समझ लें कि आपने अपनी पूरी स्ट्रिप की बोतल को ज़ाया कर दिया। क्योंकि डेजर्ट कूलर से मॉइस्चर आता है, नमी आती है। तो अगर आपके कमरे में नमी है और आप बड़ी देर तक बोतल खोल के और ग्लूकोमीटर को खोल के उसमें बैठे हुए हैं, तो यस, आप अपनी मशीन को दोबारा से मॉइस्चर एक्सपोजर दे के खराब कर रहे हैं। ये बज़ाहिर बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके ऊपर फोकस करके ही हमें अपने मीटर की हिफाजत करनी पड़ती है। Great. Thank you so much, Dr. Fawzia. Over to you, Dr. Roach. Thank you so much, Thank you, Dr. Rina. Fawzia. It was a wonderful session with you, and बहुत अच्छे questions हमें receive हुए live भी। पहले हमारे पास inbox में भी काफी सारे सवाल आता है, and thank you so much that you addressed all of them, and a few very pertinent ones, especially taking control of your glucose meter, how to keep them. And another thing जो आपने mention की, जो रात के 3 बजे और रात सुबह के जो 8 बजे है, निहार मुंह जिसको हम कहते हैं testing, which actually relates back to Somuki and the dawn phenomena जो हम पाकिस्तान में बहुत देखते हैं. You touched upon that also, so thank you so much for that. And we would love to have another session. And if there are again questions coming in, we would definitely reach out to you and would ask you to answer them. So thank you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों की कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का और मुझे इनवाइट करने का। आई होप कि हमारा ये पैगाम जितना लोग सुन सकें ताकि उनको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि पर्सन विद डायबिटीज़ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज डायबिटिक केयर टीम to empower our people with diabetes to learn the best tricks and tips to have a better life, a healthy life. And I think Rosh is doing a wonderful job in giving all that information out to the people with diabetes. And I really admire all the efforts that you people are doing. Once again, thank you so much, and Assalamu alaikum.